Hi, good evening. My name is Pratik Gupta and welcome to Unacademy. सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो रिगार्डिंग है बजट एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बजटिंग इन केस ऑफ आर कंट्री। अभी आप लोगों ने अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि जस्ट अ फ्यू डेज बैक देयर वाज अ न्यूज़ that on 6th of September there was a notification given by Ministry of Finance regarding the budgetary meetings which are going to start from 10th of October। ठीक है, तो 6 सितंबर की नोटिफिकेशन थी कि 10 अक्टूबर से बजट के रिगार्डिंग मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोग सोचेंगे कि बजट तो 1 फेब को आता है, ठीक है, तो अभी से उसकी मीटिंग क्यों स्टार्ट हो गई? दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 4 months अर्लियर द मीटिंग रिगार्डिंग बजट्स हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए, आज की क्लास में, आज की डिस्कशन में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ये है, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि बजट बनाने का तरीका क्या होता है और उसमें इतना टाइम क्यों लगता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज प्रतीक गुप्ता एज यू नो एंड माय कोड इज PGUPSC। सो ऑन 8th of September I started my plus course on the Unacademy app, so you can join there if you want to prepare economics in a very easy way. And the current course which I've started is mainly for prelims point of view for 2023 and 24. And if you want to join a comprehensive course, then I'm going to start from 10th of October and the timing will be announced very soon. So you can use my code PGUPSC for the purpose of getting 10% off on the various courses that you want to enroll for in the Unacademy. Okay, then why you need to choose Unacademy? You know, it's the largest platform in India for online learning. Then why you need to choose Unacademy? Because toppers also decided to take coaching here, so you also need to take coaching here. Then you can choose the educator as per your liking and as per your subject area. Then you can find us on the Telegram and moreover also on the community link in the Unacademy app. Then 11th of September is the date from when the mains test series is going to start for 2023. Then you can simply choose the iconic subscription, because there's so many benefits here, because you will get one-to-one mentorship, daily question and answer writing thing and the other. Then if you're facing any kind of financial difficulty, you can opt for 0% EMI. For this purpose, you can simply contact our team and that phone number is given in front of your screen. From 8th of September, the batches have been started for bilingual Hindi and English. So as per your requirement, you can simply choose and you can simply join the courses. Now let's come back to our discussion regarding budget. First of all, that the thing which I want to clarify to you, that in the entire Constitution of India, कि जो हमारा पूरा का पूरा संविधान है, जो हमारा Constitution है, in the entire Constitution, the word budget is not mentioned anywhere. Okay, do remember, the word budget is not mentioned anywhere in the entire Constitution of India. What is being mentioned, the thing which is mentioned is basically the annual financial statement, which is given under Article 112 of the Indian Constitution. देखिए, बजट होता क्या है? नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर बजट का मतलब क्या होता है। देखिए, बजट इज बेसिकली नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट बेसिकली आपको ये बताती है कि आने वाले साल में, बिकॉज यू नो दिस थिंग, द बजट इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट उसमें आपको ये बताती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे अभी आप जानते हैं बजट जो आएगा वो 2023-24 का आएगा। ओके, सो इस बजट में गवर्नमेंट आपको ये बताएगी कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, उसमें गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से होगी। ओके, and then after that, whatever amount of money which is going to be earned by the government, where the government is going to spend this money, that means on what all areas the government is going to do the expenditure from the given income. Okay, यानी कि कमाया जाएगा और कमा के उस पैसे को खर्च किया जाएगा। इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में आपको जानकारी देती है। नॉर्मली if I'll tell you, in case of economy like USA, the budget is not a very important document there. But in case of our country, the budget is a very important document, because in case of parliamentary form of democracy, budget is basically having its own relevance, because it is one of the document which has been given by the ruling party, where the ruling party is basically telling you that what all areas on which the government is going to spend money, and the most important thing, under that the government is also announcing the various social welfare program which the government is going to spend on the people of our country. Getting what I'm trying to say? तो मान के चलिए बजट को हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। एंड यू नो दिस थिंग, टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वी आर आल्सो हैविंग अ सेपरेट सेशन इन द पार्लियामेंट which is known as a budget session. Okay,
and that is basically the longest session among all the 3 sessions that you have in the parliament. Like you have the budget session, you have the monsoon session, and then you have the winter session. Okay, so the next session which are going to have in case of our country in this particular year is going to be the winter session, that is going to start in the month of November or in the month of December. That is totally up to the government of India that when they want to start. ठीक है, तो बजट के अंदर गवर्नमेंट ये बताती है कि हमें इनकम कहां से होगी और हमें खर्चे कहां कहां पे करने हैं. नाउ if you read article 112 of the constitution of India here, so some part of the article I mentioned here, the president shall in respect of every financial year which is starting from April cause to be laid before both the houses of parliament a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, in this part referred to as annual financial statement. Okay, the estimates of expenditure embedded in the annual financial statement shall show separately the sums required to meet expenditure described by the conditions as expenditure charged upon the consolidated fund of India. ठीक है, अब देखिए इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं कि पॉइंट नंबर 2 का मतलब होता क्या है. देखिए यहां पे लाइक सी, as I told you that we have 2 things, one is called as an expenditure part and the second is basically known as an income part. Okay, now in the budget what the government of India is basically doing, they're basically presenting 2 bills in the parliament. 2 बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं. इनकम के लिए there is a bill called financial bill or the finance bill is basically being presented by the government, जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि फ्रॉम व्हाट ऑल एरियाज वी आर गोइंग टू अर्न मनी, यानी कि इनकम टैक्स कितना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स कितना होगा, जीएसटी कितना होगा, एक्साइज कितना होगा, कस्टम कितना होगा, एंड व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच द गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न मनी. और अदर सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए द गवर्नमेंट इज गेटिंग लॉट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द पीएसयू. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ मनी बाय वे ऑफ सेलिंग द गवर्नमेंट कंपनी, जैसे एयर इंडिया भी बेची है. ठीक है, अब गवर्नमेंट और भी कंपनीज यानी कि बैंक्स को भी बेचने की बात कर रही है. तो वट एवर सोर्सेज ऑफ फंड which the government of India is going to get, that is basically mentioned in this particular bill. एक्सपेंडिचर के लिए एक और अलग से बिल पेश किया जाता है, इसका नाम होता है appropriation bill. Okay, the second bill which is being presented by the government in the parliament is what? Appropriation bill, जो कि हमें ये बताता है कि एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट कितना कितना आने वाले साल में करेगी. Are you getting what I am trying to say? So appropriation bill is nothing but a statement of expenditure of the government of India, under which government is basically telling you that how much amount of money is going to be spent by each and every ministry in case of our country. कि जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, रेलवेज हो गया. जैसे रेलवे का बजट पहले अलग आता था, बट नाउ रेलवे बजट इज ऑल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द जनरल बजट. तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में कितना कितना खर्चा होने वाला है गवर्नमेंट एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर ये बताती है. ओके, नाउ whatever amount of money which is being earned by government of India as per the rules in the Constitution of India under Article 266, whatever amount of money which is being earned by government is supposed to be put in a fund called Consolidated Fund of India. ठीक है, which is basically kind of the largest fund in case of our country. तो जो भी गवर्नमेंट की इनकम होने वाली है वो इस फंड में डिपॉजिट की जाएगी. और भी फंड है पब्लिक अकाउंट के नाम से, बट आज का मुद्दा हमारा वो नहीं है बात करने का. सो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर इस पैसे को डिपॉजिट किया जाएगा. नाउ एज यू नो वट एवर अमाउंट ऑफ मनी अर्न यू आर डिपॉजिटिंग हियर. नाउ व्हेन इट कम्स टू विड्रॉइंग मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड, देयर इज अ बिल नीड टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस. यानी कि अगर आपको इस फंड में से एक भी रुपया विड्रॉ करना है तो उस केस के लिए आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेनी होगी, और उसी परमिशन के लिए मान के चलिए इस एप्रोप्रिएशन बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है एज ए पार्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली मेंशनिंग एंड आस्किंग द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट दैट वी नीड योर परमिशन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंड so that we can do different expenditures of the different ministries. Okay, without parliament permission the government of India cannot withdraw even a single rupee from this fund, except you can say something called as a charged expenditure. यानी कि ये वो खर्चे हैं जिनको करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
पार्लियामेंट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 में बताया गया है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे करना होता है और उनको करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको नाम क्या दिया है, चार्ज एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Okay, then if we talk about the salaries of the Supreme Court judges, the pension of the High Court judges. Okay, so if you want to see the complete list of what all expenditure for which government is not supposed to take any permission, उसके लिए आप आर्टिकल 112 सब क्लॉज 3 को पढ़ सकते हैं, you will get a complete list there. Okay, तो देखिए गवर्नमेंट को इस बिल को पास कराना होता है पार्लियामेंट के अंदर। नाउ एज दीज टू बिल आर नथिंग बट ए पार्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट, यू कैन से these are called as a money bill because they are dealing with the money matters only, and that's why as per the Indian constitution these are supposed to be introduced in the lower house of the parliament, which is nothing but the Lok Sabha, जहां पे इन बिल को आपको सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 1/2+1 से पास करवाना होता है। ओके, दैट यू नीड टू पास इट विद simple majority, that is 50% plus 1, that you need to simply get this bill passed in the parliament. Getting what I am trying to say? तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट को खर्चे करने हैं 1 अप्रैल से, इसके लिए गवर्नमेंट को पैसे विड्रॉ करने हैं इस पर्टिकुलर फंड में से, और पैसे विड्रॉ करने के लिए उनको परमिशन चाहिए पार्लियामेंट से, जिसके लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। Getting what I am trying to say? तो ये तरीका है गवर्नमेंट का एक तरीके से बजट को मतलब पास कराने का। तो बजट में बेसिकली 2 बिल होते हैं जिनको गवर्नमेंट पास कराती है पार्लियामेंट में। तो इनकम इज बेसिकली अबाउट फाइनेंस बिल वेयर द मनी विल बी डिपॉजिटेड, एंड देन द एप्रोप्रिएशन बिल, द बिल विच इज सपोज टू बी अलाउ द गवर्नमेंट टू विड्रॉ मनी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहां पे ये आता है कि जो अलग अलग हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, they basically need certain amount of money to be spent. ठीक, now as you know every ministry needs money to spend as per the announcement done by the government of India. ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की अलग अलग स्कीम होती है, जैसे रेलवे को पैसा खर्च करना है, सो रेलवे नीड मनी फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग इट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नीड मनी टू स्पेंड। सो पॉइंट इज व्हाट, अब जैसे आपका जो बजट आएगा 2023-24 के लिए, गेटिंग, सो फॉर दिस पर्टिकुलर बजट व्हाट द मिनिस्ट्रीज विल डू, दे हैव अ डिपार्टमेंट विद इन देयर मिनिस्ट्री विच इज बेसिकली एस्टिमेटिंग दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे नीड इन द अपकमिंग ईयर टू डू डिफरेंट एक्सपेंडिचर एज ए पार्ट ऑफ द स्कीम्स विच आर गोइंग ऑन इन द कंट्री। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप कि जितनी भी स्कीम किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की चल रही हैं, उस मिनिस्ट्री को उस स्कीम्स को पूरा करने के लिए आने वाले साल में कुछ कुछ पैसा चाहिए होता है। सो पॉइंट इज व्हाट, फ्रॉम 10th of October 2022 ऑनवर्ड्स जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, वट एवर मिनिस्ट्रीज वी हैव एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे विल सिंपली स्टार्ट प्रिपेयरिंग, in fact I'm telling you they have already started, they will start preparing a statement that how much amount of money they need in the upcoming year to spend on different area। और देखिए ये हिसाब लगा पाना कि हमें कितना पैसा चाहिए is not an easy task, I'm telling you. Okay, so for this particular thing we have a different budgeting schemes, or you can say budgeting processes. So basically what is the basic difference between the word called budget and the budgeting? You can say budget is basically that you're telling I need this much amount of money, and budgeting is basically the way to decide or to calculate how much amount of money I need to do a particular task. For example, I am saying I need to go for a tour, and to go for a tour I need 1 lakh rupee. बट ये 1 लाख रुपये आपने डिसाइड कैसे किया, दैट इज नथिंग बट दी बजटिंग पार्ट, कि कितना खर्चा टिकट पे होगा, कितना खर्चा होटल पे होगा, कितना खर्चा ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, कितना खर्चा शॉपिंग पे होगा, दैट यू बेसिकली नीड टू सी, एंड देन आफ्टर दैट यू कम टू दिस नंबर।
So budget is a document. Budgeting is a basically a process. Okay. सो अलग अलग मिनिस्ट्रीज बेसिकली ये बजटिंग करती हैं कि हमें अलग अलग स्कीम्स के लिए कितना पैसा चाहिए होगा इन दी अपकमिंग ईयर. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दे हैव different methods by which they are being trying to calculate. For example, there is a method called zero based budgeting, जिसके अंदर देखिए जितनी भी स्कीम के लिए गवर्नमेंट को मिनिस्ट्रीज को पैसा चाहिए होता है, दे बेसिकली गो टू द मार्केट अफ्रेश and they basically try to find out what is the money or what is the cost of doing different tasks as per the current requirement, and then they prepare their document. Okay, for example, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि you need to make a house और आपको ये कैलकुलेट करना है कि घर बनाने में कितना खर्चा आने वाला है. सो इसके लिए आप क्या करेंगे? You will go to the market to find out the current cost of raw material, labor, the various things that you need to in your house. So accordingly you will decide and you will calculate this is the amount of money I need. Same way all the ministries basically also go to the different places in the country to see that whatever task they are going to do to perform that particular task, how much amount of money they need. And that is a very tedious and very lengthy task. तो सारी मिनिस्ट्रीज मान के चलिए इस टास्क को करना स्टार्ट कर देती है नॉर्मली इन द मंथ ऑफ सितंबर ओनली. सो कह सकते हैं कि अगले साल के बजट के लिए अभी से काम मिनिस्ट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है. एंड देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर देयर कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे नीड इन द अपकमिंग ईयर फॉर डिफरेंट टास्क. अब देखिए जैसे ही स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएगी कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी वी नीड, दे विल गो टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड दे विल सबमिट दिस डॉक्यूमेंट कि सर और मैम कि दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी वी नीड इन द अपकमिंग ईयर टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क. अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करेगा? जो भी डॉक्यूमेंट उनको दिया गया है अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा, एग्रीकल्चर, डिफेंस, जो भी मिनिस्ट्रीज हैं, वो देखेंगे दैट हाउ दे एस्टिमेटेड द मनी, कि हाउ दे एस्टिमेटेड द एक्सपेंडिचर पार्ट, एंड अकॉर्डिंगली इफ दे आर बीइंग सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन इन द डिमांड, देन व्हाट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल डू, they will simply include this in the budget document. तो जो एप्रोप्रिएशन बिल है उसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इस पर्टिकुलर चीज के लिए इतना पैसा मांगा है, सो वी आर प्रोवाइडिंग इट. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सेम वे इफ सपोज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग ए डिमांड मेड बाय पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्या बोलेंगे कि ये जो डिमांड आपने अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन की है, वी आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट, प्लीज क्लैरिफाई इट. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो उनसे बोलेंगे कि आप इसे क्लैरिफिकेशन दीजिए, और क्लैरिफिकेशन देके जब उनको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी देन देयर माइट बी पॉसिबिलिटी इफ द थिंग्स आर फाइन दे विल सिंपली इंक्लूड इन दी बजट डॉक्यूमेंट. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से सारी की सारी मिनिस्ट्रीज वन बाय वन दे स्टार्ट सबमिटिंग देयर डिमांड फॉर ग्रांट यानी कि अनुदान. Because you know this thing, whatever amount of money will be given by Ministry of Finance to the different ministries, that is not supposed to be paid back. वो खर्चा हो गया, बात खत्म हो गई. तो ग्रांट्स के लिए वो डिमांड करेंगे, और उसके बाद जब हमारा ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, that how much amount of money different ministries need, then you can say that document will be presented in the parliament. ठीक है. और मैं आपको बताऊं बजट डॉक्यूमेंट अच्छा खासा मोटा डॉक्यूमेंट होता है, देयर आर 100 ऑफ पेजेस इन द बजट डॉक्यूमेंट. बट हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर ओनली रीडिंग द इंपॉर्टेंट पार्ट, और यू कैन से वट एवर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दे हैव इन द बजट डॉक्यूमेंट, दे ओनली रीड दैट पार्ट. क्योंकि मान के चलिए अगर वो सब कुछ ही पढ़ने बैठ गए फिर तो भैया लंबा बजट खींचने वाला है, फिर तो वो डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते हफ्ते लग जाएंगे. ओके. सो उस केस में मान के चलिए दे ओनली डू द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कि दिस इज व्हाट द अनाउंसमेंट्स द गवर्नमेंट आर हैविंग, और बाकी जो चीजें नॉर्मल चलती आ रही है उन पे उनको अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती है. अनाउंस किया जाता है, बजट पढ़ा जाता है, और जैसे ही बजट पढ़ के खत्म हो जाता है देन यू कैन से दैट बजट डॉक्यूमेंट इज बीइंग सबमिटेड टू द पार्लियामेंट, एंड देन आफ्टर दैट the discussion about the budget will be started. ठीक है. पहले देखिए क्या था, बिफोर 2016-17 when it comes to presenting budget by the Ministry of Finance,
it was presented by the finance ministry on the last working day in the month of Feb, यानी कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे वाले दिन बजट को पेश किया जाता था पार्लियामेंट में. एंड यू नो दिस थिंग, द एक्सपेंडिचर नीड टू बी डन बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 1st of April. सो होता क्या था, देयर वाज अ वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर द डिस्कशन अबाउट द डिमांड मेड बाय द मिनिस्ट्रीज इन द पार्लियामेंट. क्योंकि देखिए, रूलिंग पार्टी का कोई भी बंदा उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि आपने इतना पैसा क्यों मांगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्पेंड द मनी. Who is going to point a finger towards the demand of the ministries? It is the opposition party. तो opposition party के पास केवल एक महीना होता था to simply raise the questions and to simply tell the entire country, because you know this thing, all the sessions of the parliament are being presented on the Rajya Sabha and Lok Sabha channel, and moreover on everywhere, or you can say easily you will be able to access it. तो opposition party basically questions put up करती है regarding that why this demand is being made by the ministry. तो अगर उनको वो डिमांड ठीक नहीं लगती है, सो दे हैव एन ऑप्शन टू प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड कट मोशंस इन द पार्लियामेंट. ओके, और कट मोशंस बेसिकली 3 तरह के मोशंस हमारे पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज अ पॉलिसी कट मोशन, विच इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ वेरी वेरी काइंड ऑफ टिपिकल मोशन आई वुड से, बिकॉज इफ इट इज बीइंग पास्ड, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो अपोजिशन पार्टी होती है, they are simply questioning the complete policy of the document of the ruling party. और अगर ये पास हो जाता है, this particular the policy cut motion is being passed in the parliament, then government stands censured. That means the government has lost majority in the parliament, and that the ruling party need to bring something called confidence motion. और अगर confidence motion pass नहीं हुआ, because do remember, confidence motion is being brought by the ruling party, and no confidence motion is basically being brought by the opposition party. तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी को ये प्रूव करना होता है that yes we have adequate majority though the demand has been defeated in the parliament, okay, but still we have the kind of support of the house. अब देखिए, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, पॉलिसी कट मोशन जब भी पास हो पाते हैं जब आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है. इन द करंट सिनेरियो इट इज नॉट दैट easy to be passed. It is in fact impossible to be passed. The second cut motion is basically economy cut, जहां पे अमाउंट को कम करने की बात की जाती है, that you being asking extra amount of money, so it need to be reduced. And the third is basically known as token cut motion, with a certain amount of, you can say, the questions the opposition party wants to raise regarding the demand made by the ministry. Okay, so regarding that, you can say, when the demand is being provided, so why it is being there, so they need basically ask for clarification. और अगर वो पास हो जाता है तो टोकन कट में केवल 100 रुपए काटे जाते हैं for one particular question if it is passed. But do remember, if the policy cut motion is being passed by the parliament, then the ministry is going to get only 1 rupee. 1 रुपया मिलेगा केवल, उससे आप हेड टेल करते रहिए पूरे साल आराम से बैठ के. But that is not easy to be passed in the parliament, I'm telling you. ठीक है. अब देखिए, इसी टाइम डेफिशिएंसी को लेके कि दे जस्ट हैव 1 month टू डिस्कस अबाउट द वेरियस डिमांड्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, करंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट वी नीड टू प्रीपोन द डेट ऑफ बजट. इसीलिए मान के चलिए, अब जो बजट हमारी पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, इट इज ऑन द फर्स्ट डे और द फर्स्ट वर्किंग डे इन द मंथ ऑफ फेब, सो दैट द रूलिंग पार्टी and opposition party, whatever questions they want to make, they will have 2 months to raise different questions and they will be able to discuss. But देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में काम कैसे होता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, that most of the time या तो उसे एडजर्न कर दिया जाता है या फिर पार्लियामेंट को एडवांस में, मतलब what the point is, what as the people who are basically sitting there, they are not cooperating with each other. That's why you can say that प्रॉपर डिस्कशन इज नॉट हैपनिंग इन दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. तो मान के चलिए, पार्लियामेंट में लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, नहीं डिस्कस करते हैं, दे बेसिकली गेट अवे विद दिस. सो ओनली फॉर द सेक ऑफ, यू कैन से, टू गेट मोर टाइम एंड टू गेट इट पास विद इन द टाइम पीरियड, बिकॉज व्हाट हैपेंड अर्लियर, व्हेन दे वर नॉट एबल टू पास द बजट टिल 31st March for the next financial year, then they used to have something called vote on account that was supposed to be provided. ओके, वोट ऑन अकाउंट की चीज होती थी जिसको प्रोवाइड किया जाता था, बट स्टिल इट इज बीइंग यूज्ड, आई वुड से. बट द पॉइंट इज व्हाट, एज दे हैव कंपैरेटिवली मोर अमाउंट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशन इज एक्चुअली बीइंग हैपनिंग देयर.
ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर यू कैन से बजट इज बेसिकली बीइंग prepared by the government. You can say the preparation has been started by the government almost 4-5 months back. So जो हमारे expenditure department होता है, so as you can see in this particular with the news which appeared just a few days back, the center will begin preparation for the union budget for 2023-24 from 10th of October. द प्री बजट मीटिंग चेयर्ड बाय सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर, जो कि अभी हैं डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, एंड ही इज अ 1987 बैच IAS ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु कैडर, shall commence on 10th October 2022, stated the budget circular for 23-24 of the budget division of the Department of Economic Affairs, dated 6th of September 2022. यानी कि नोटिफिकेशन 6 सितंबर को आई है कि 10th अक्टूबर से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी. Now, as you can see, a notification released by the Ministry of Finance said that the pre-budget meeting will begin on 10th of October. The budget since 2017 is presented on 1st of Feb. It was presented on the first day of Feb for the first time by the then Finance Minister, Arun Jaitley Sahab. The budget 23-24 will most likely to be presented by the Finance Minister, Nirmala Sitharaman. This will be the 5th budget of the Modi government. Also, it will be the Sitharaman's last budget before the 2024 general election, because you know this thing, next year in 2024 they will have something called interim budget will be presented. So they're not supposed to provide a full-fledged budget. So in the interim budget, what happened, the government is normally announcing only the regular expenditure, and they're not supposed to announce any new welfare scheme or the other, because if they will do, मान लीजिए बजट से इलेक्शन से जस्ट पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खूब सारी अनाउंसमेंट कर दी कि हम गरीब के लिए ये करेंगे, हम ये लोन माफ करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे. सो इस केस में देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दे विल सिंपली इन्फ्लुएंस दी वोटर बिहेवियर. ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए बहुत सारी अनाउंसमेंट कर दी गई बजट से इलेक्शन से जस्ट पहले, तो हो सकता है कि उनमें जो उनका एक तरीका है, जो उनका रुझान है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, वो बदल के उनकी तरफ आ जाए. सो दैट्स व्हाई इंटरिम बजट इज बेसिकली बीइंग गिवन वेयर यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड द रेगुलर एक्सपेंडिचर. सो व्हाटएवर थिंग्स आर गोइंग ऑन, ओनली ऑन दैट यू नीड टू प्रोवाइड द एक्सपेंडिचर, एंड नो न्यू अनाउंसमेंट इज सपोज्ड टू बी डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. गेटिंग? तो देखिए बजट का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि दे बेसिकली स्टार्ट एंड दे बेसिकली कैलकुलेट. नाउ आफ्टर दिस, जब भी आपको बजट मिलता है, जैसे ये देखिए, ये जो आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर यहां पे दिख रही है, दैट इज फ्रॉम द बजट डॉक्यूमेंट ऑफ 2022-23. ओके, सो डू रिमेंबर एवरी ईयर बजट इज गिविंग यू द नंबर्स फॉर 3 years. Upcoming year, the year which is going on, and the last year which is basically being gone. अब देखिए आप कह सकते हैं 22-23 का बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था 1st of Feb 2022 को. ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने यह बताया कि आने वाले साल में हम कितना खर्चा करने वाले हैं. दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन बजट एस्टिमेट देयर, यानी कि बजट के अनुमान है कि कितना कितना खर्चा होगा और कितनी कितनी इनकम गवर्नमेंट को अलग अलग सोर्सेस से आने वाली है. सो बेसिकली इट्स अ estimates done by the government of India, regarding the upcoming year income and expenditure part. अब देखिए करंट ईयर जो चल रहा है, इसके 2 नंबर्स मिलते हैं, बजट एस्टिमेट एंड रिवाइज एस्टिमेट. These are those numbers when the budget for 2021-22, when it was presented on Feb 2021 को जब 21-22 का बजट पेश किया गया था, तो उसमें गवर्नमेंट ने यह बताया था कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे गोइंग टू स्पेंड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे गोइंग टू अर्न फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. तो यहां पे वही नंबर लिखे जाते हैं जो गवर्नमेंट ये बताती है कि हम आने वाले साल में खर्च करेंगे. जैसे 22-23 के यहां बताए गए हैं, द सेम बजट एस्टिमेट्स आर बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट हियर इन दिस पर्टिकुलर लाइन. अब देखिए जो 21-22 वाला जो दूसरी है यहां पर रिवाइज एस्टिमेट. अब देखिए बजट आ रहा है कब, आपका 1st Feb 2022 को, नेक्स्ट ईयर का. इन विच ईयर, द ईयर विच इज गोइंग ऑन, यानी कि ये 21-22 चल रहा है,
इस साल के अंदर आपने नेक्स्ट ईयर का बजट दिया है। अब देखिए 21-22 के 9 मंथ्स और यू कैन से 3 क्वार्टर्स आर ऑलरेडी ओवर। जो पहला अप्रैल टू जून का क्वार्टर है, जुलाई से आपका सितंबर का क्वार्टर है, एंड देन अक्टूबर टू नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, 3 क्वार्टर्स आर ऑलरेडी ओवर एंड द गवर्नमेंट इज बेसिकली हैविंग नंबर्स फॉर 3 क्वार्टर्स दैट व्हाट दे हैव डन। जैसा आप कहते हैं ना कि आपने कहीं घूमने के लिए निकले एंड यू थॉट दैट यू गोइंग टू स्पेंड 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपका टूर है मान लीजिए 5 दिन का। नाउ इन दिस 5 days ऑफ टूर, इमेजिन 4 दिन पूरे हुए और चौथे दिन आपने ये देखा कि आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड 1 लाख रुपी ऑन माई टूर, बट अभी 4 दिन में मेरा कितना खर्च हो चुका है। सो इमेजिन इन द 4 days यू सेड दैट आई स्पेंट अराउंड लेट्स सपोज 70,000 रुपीज। सो व्हाट यू विल से कि 1 लाख सोचा था, 70 is already being spent in the last 4 days. In the next 1 day, the other expenditure which are basically being left is let's suppose 35,000 rupees. तो आप क्या कहेंगे? I might go to spend 1,05,000. But what you thought? 1 lakh and what you might spend 1,05,000. Same way. अब जैसे यहाँ पे हमारे 12 में से 9 महीने पूरे हो चुके हैं, so out of 12 months, 9 months are already over. So government is already having good amount of information that what they have done in the current year budget. So that's why they are revising the number. जैसे हमने यहाँ पे रिवाइज किए कि हम 1 लाख की जगह 1,05,000 खर्च करने वाले हैं, the same way the government is providing the revised estimate. So that's why you can say for the current year the government is showing कि what we thought and what we might end up spending, okay, or earning. और जैसे 2021 पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है and we have all the information about it, so that's why the government is giving you the actual number for it. Getting? Same way, अब जो हमारे पास 23-24 का बजट आएगा उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव यू द बजट एस्टिमेट of 2023-24, that means what amount of money they're going to earn or what amount of money they're going to spend. जो 22-23 चल रहा होगा उस समय the government will give you same way budget estimate and revised estimate, and the 21-22 which is being completed totally and we have all the information about it, the government will give you the actual sale. Getting what I'm trying to say? So in this particular way the government is giving you information about the budget. ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि बजटिंग का प्रोसेस बजट आने से पहले बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है. दैट इज व्हाट दे एक्चुअली डू एंड दैट इज हाउ द डॉक्यूमेंट्स इज बीइंग मेड. और जब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होके पार्लियामेंट में पेश हो जाता है और पास हो जाता है, देन यू कैन से फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स द गवर्नमेंट बेसिकली गेट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट. और इम्प्लीमेंटेशन में आप जानते हैं अगर काम ठीक से होगा द थिंग्स विल बी रियली गुड, बट द गवर्नमेंट विल सिंपली डिले इट, देन इट इज गोइंग टू क्रिएट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बजट का पूरा प्रोसेस होता है. तो अभी नोटिफिकेशन आई थी, सो आई थॉट आई नीड टू टेल यू द एंटायर प्रोसेस रिगार्डिंग इट. Getting what I'm trying to say? So this is the entire process and that is what the budget is that I need to tell you. So in the upcoming sessions I will also tell you कि whatever budget document we have, what exactly is being given by government over there. तो उसके बारे में आने वाली क्लासेस में बात करेंगे. आज के लिए बस इतना ही था हमारे इस सेशन के अंदर. But before winding up the class, as you know that we have the scholarship test which are going on. So as you know, top 500 rankers will be able to get good amount of off on their subscription, 50%, 30% and 25%. Now Doubt Darbar, as I told you yesterday also, on 13th and 27th, History and Geography, 14th and 28th September, Economy, Environment and Science and Technology, and 15 and 29, you will get Polity, Current Affairs and IR. Okay, so this is what I need to tell you. Now again, the announcement from 8th of September I've started my comprehensive course. So if you have still not joined it, you can join and you can use my code PGUPSC. Okay, and then after that from 10th of October I'm going to start my comprehensive course. So if you want to join that, you can join it. तो आज के सेशन में इतना ही. Thank you very much. Take care and bye bye.